Hello everyone, a very warm welcome to Ramayas. This is Arushi here and I will be taking up the discussion on a Hindu editorial. तो द हिंदू में एक important editorial आया था with respect to wetland conservation. क्यों is it important? Why is it necessary for mainstreaming wetland conservation? अब किसी भी चीज़ को मेन स्ट्रीम में लाने का बेसिक मतलब ये होता है दैट हमारी जितनी भी स्कीम्स पॉलिसीज़ कोई भी हम प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्रायोरिटी बेसिस पे हम उसको कंसिडर करें, राइट। मेन स्ट्रीमिंग का मतलब ये भी होता है किसी भी चीज़ को सेंटर स्टेज पे लाना, राइट, थ्रू सोशल मीडिया कैंपेन, थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन, मास कैंपेन, उसको पब्लिक के अटेंशन में लाना, राइट। So why is it important? The article, the editorial is actually talking क्यों ज़रूरी है to mainstream the wetland conservation. Obviously कहीं ना कहीं एक element of neglect है in our town planning, in our development planning and policies. जो भी हमारे processes है, whether at the macro level or whether at the local level, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एलिमेंट ऑफ इग्नोरेंस होगा जहाँ पे हम वेटलैंड्स के कंजर्वेशन पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं. एंड ज़रूरी नहीं दैट वी आर ओनली एंड ओनली टॉकिंग अबाउट द साइट्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द रामसर. ऑब्वियसली रामसर साइट्स को हम लोग अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस देते हैं फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन, बट यूजुअली जो हमारे टाउनशिप में आसपास छोटे मोटे लेक्स और पॉन्ड्स हैं, हमें उनके भी कंजर्वेशन और मेंटेनेंस पे ध्यान देना चाहिए सबसे पहली बात. और क्यों ध्यान देना चाहिए? इफ दे हैव ड्राइड अप, इफ दे आर पोल्यूटेड, इफ दे आर डर्टी, then how can we mobilize the local community, right? How can we mobilize the municipality and raise awareness and ask them to conserve those wetland ecosystems, right? Why is it only that only Ramsar and non Ramsar sites को हम लोग ऐसे ही ignore कर रहे हैं? So let us understand कि हमारी day to day life में, right, as an ecosystem service, as a recreational spot, what is basically the importance of a wetland? क्यों ज़रूरी है, right? And why is this article also very very important from the perspective of GS3 environment? All right. So let's just begin and break down the article. First let's understand कि wetland होता क्या है. What is a wetland? So we all know कि रामसर कन्वेंशन, रामसर basically is a city in Iran and वहाँ पे wetlands को conserve करने के लिए convention sign किया गया था known as रामसर convention. It is basically an intergovernmental arrangement and intergovernmental partnership. अब इसी कन्वेंशन का जो फर्स्ट आर्टिकल है दैट स्टेट्स एंड क्लियरली डिफाइंस द वेटलैंड इकोसिस्टम एज समथिंग दैट कंसिस्ट्स ऑफ मार्श, फेन, पीटलैंड, वाटर. ओके, जितने भी आपके मैनग्रूव्स आ जाते हैं, जितने भी आपके स्वैम्प लैंड्स आ जाते हैं, राइट, जो भी आपके मार्शेस, फेन, पीटलैंड एंड स्वैम्प लैंड, ये चारों चीज़ें, ये चारों टर्म्स जो हैं आपस में काफ़ी सिमिलर हैं, बहुत ही माइन्यूट इसमें डिफरेंसेस होते हैं. सो लाइक फॉर टेक्निकल स्टूडेंट्स हु आर इनटू ज्योग्राफी ऑप्शनल, और काफ़ी इन डेप्थ उन्होंने एनालिसिस किया हुआ है. और इफ़ यू हैव covered your environment section also really well, you will be able to understand. Okay, आपके जितने भी ऑक्सबो लेक आता है, that is also a part of wetland. All right, all of your estuaries are also a part of your wetlands. Salt lakes, okay, तो ज़रूरी नहीं कि जितने भी fresh water bodies हैं वही wetland ecosystem का part है. brackish water body, for example the Sambar lake in Rajasthan, that is also a part of wetland, right? तो क्यों ज़रूरी है? Why? next question is why is wetland important? So UPSC ने previous year question में तो पूछ लिया that okay, Amazon rainforests और tropical rainforests are lungs of the earth. Abundant canopy होता है, provides a lot of oxygen, okay, to the entire planet. तो wetlands are the kidneys. ऑफिशियल यूपीएससी क्वेश्चन ने ही बताया कि वेटलैंड्स एक किडनी की तरह काम करते हैं. व्हाई? लेट अस अंडरस्टैंड. सो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रायर मोस्ट फंक्शन होता है वेटलैंड का, दैट इज एब्जॉर्प्शन.
Okay, like a sponge, they absorb all the pollutants, they absorb all the toxic surface runoff, they help in sedimentation. तो ये जो 3 important activities होती हैं wetlands की, and because this is how they act, क्या करते हैं वो, आसपास का जो इकोसिस्टम होता है उसको प्योरीफाई करने में वेटलैंड्स का काफ़ी बड़ा रोल रहता है. तो जैसे हमारा एक छोटा सा एक टाउन का सेटअप है या फिर एक सिटी सेटअप है, राइट, एंड वहाँ पे इफ़ यू हैव अ वेरी हेल्दी वेटलैंड इकोसिस्टम, इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ का ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी वो कर दे, वहाँ का जो आसपास का पोल्यूशन है, जो गार्बेज है, राइट, अगर टॉक्सिफिकेशन हो रहा, अगर जो आपका जो मेन स्ट्रीम वाटर सप्लाई इट इज गेटिंग लाइक वेरी मच पोल्यूटेड, उसमें भी वेटलैंड कैन एक्ट एज अ स्पंज एंड prevent the worsening of the already existing pollution. तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के डे टू डे सिनेरियो की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ. डे टू डे सिनेरियो में जो आज की डेट में क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज़ की वजह से फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं, स्पेशली इन दी अर्बन सेटअप, इन दी अर्बन सेटिंग, जो आपके जल्दी जल्दी फ्लैश फ्लड्स आने लगते हैं. तो किसी भी अर्बन सेटिंग में, किसी भी अर्बन लैंडस्केप में फ्लैश फ्लड्स से प्रोटेक्ट करने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल होता है वेटलैंड्स का. दे एब्जॉर्ब द एक्सेस वाटर, राइट, द वेटलैंड्स दे एब्जॉर्ब द एक्सेस वाटर फ्रॉम द फ्लैश फ्लड्स, एंड जो मेन सिटी है हमारा, जो डे टू डे हमारी लाइफ है, वो अचानक से हिंडर होने से एटलीस्ट बच जाती है. ओके, सो दीज आर सम वेरी कॉमन, एंड ऑब्वियसली जो हमारी माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, not just even migratory birds but also the indigenous species of all the water birds, right, उनके लिए wetland ecosystem happens to be very very helpful. It will like help, it will go a long way and help in its overall conservation, right. तो यहाँ पे ये एक important aspect आ जाता है. ठीक, ओवरऑल अगर हम लोग ब्रॉड लेवल पे इसकी अंडरस्टैंडिंग देखें तो डेफिनेटली wetlands, they play a very very crucial role, they play a very important role in supporting what, livelihood also. ठीक है, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो 4.8%, 4.8%, when we say this amount, when we say that of all the area of our land mass, 4.8% belongs to the wetland. It's not like not all the 89 Ramsar sites only comprise of 4.8%. ठीक है, नंबर ऑफ रामसर साइट्स शायद तमिलनाडु में ज़्यादा होंगी, बट स्टेट वाइज एंड एरिया वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स आर देयर इन द स्टेट ऑफ गुजरात. सरप्राइजिंग बट ट्रू. ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो 4.8 to 5% शेयर है हमारी कंट्री में सारे वेटलैंड्स का, रामसर नॉन रामसर सब मिला के. उसमें से 6% लोग डायरेक्टली अपने लाइवलीहुड पे डिपेंड कर रहे हैं. कैसे? दाल लेक, दाल लेक आप जम्मू कश्मीर में चले जाओ, इट ऑफर्स अ लॉट ऑफ टूरिज्म सर्विसेज, राइट, जो हाउस बोट्स होती हैं, जो शिकाराज होती हैं, राइट. देन बिहार में आप चले जाओ, मखाना कल्टिवेशन इज हाईली डिपेंडेंट ऑन वेटलैंड, राइट. सो अगेन, एंड ऑब्वियसली फिशिंग, राइट, जो इनलैंड फिशरीज होती हैं, जो पॉन्ड derived fishing and activities होती हैं, उसको काफ़ी हद तक ये सपोर्ट करता है, एंड अ नंबर ऑफ अदर थिंग्स एज वेल. ठीक, तो लाइवलीहुड सपोर्ट के अलावा another very important aspect of wetland is that it acts as a carbon sink. wetland, it acts as a carbon sink, यानी कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहता है. एंड वी ऑल नो वाई, हम सब एनवायरनमेंट के स्टूडेंट्स हैं, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉन्ड इकोसिस्टम, राइट. जो आपका पॉन्ड यानी कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, जहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स, डायटम्स जैसे जो आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ओके, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एट अ वेरी लार्ज स्केल. एंड इनका जो क्यूमुलेटिव अगर हम देखें फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, सो दे हैव अ पोटेंशियल ऑफ being a huge carbon sink. Huge carbon sink, one thing. Second thing, जितना भी डेड मैटर होता है, जितने भी डेड
फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, जितने भी डेड एक्वेटिक प्लांट हो गए, इट सिंक्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द वेटलैंड. Okay, it sinks down at the bottom of the surface of the wetland, जो over the time detritus food chain के अंदर आते आते it basically decomposes, and the more it decomposes, okay, then also it is absorbing a lot of carbon. Okay, so बेसिकली व्हाट इज अ वेटलैंड को अगर हम देखें, स्पेशली जो आपके स्वाम्प लैंड्स होते हैं, जितने भी आपके मार्शलैंड्स होते हैं, दे हैव द टेंडेंसी टू टर्न इनटू पीटलैंड्स, जहाँ से हम लोगों को एनर्जी रिच कार्बन डेराइव प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, रॉ मटेरियल्स मिल जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कवर्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डेराइव्ड रॉ मटेरियल्स इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. 11,000 पुराना पीटलैंड है वहाँ पे. So just imagine, in terms of fossils, in terms of fossilized raw materials, they can also serve as a potential reservoir. Okay, so again, that is another very like what we can say long-term benefit of wetland. उसके अलावा, yes, obviously environment conservation में they play a very important role, they play a huge role. ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वाटर प्योरिफिकेशन, डेफिनेटली. ठीक है, ग्राउंड वाटर पे जितना भी पोल्यूशन लीच होके जा रहा है, जितने भी टॉक्सिन्स लीच होके जा रहे हैं ग्राउंड वाटर टेबल तक, दे माइट इम्पैक्ट द ड्रिंकिंग वाटर ऑफ द एंटायर सिटी. ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को 100% इम्पैक्ट करेगा. अब यहाँ पे वेटलैंड का क्या रोल आ जाता है? जितना भी पोल्यूटेंट या टॉक्सिक मटेरियल है, वेटलैंड विल एब्जॉर्ब इट, राइट. एंड जब ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात आ जाती है, देन the toxins, they get precipitated, they get filtered out. Okay, so basically this is a mechanism जो हमें हर वाटर बॉडी में देखने को मिल जाता है, the mechanism of rejuvenation और self regulation. कुछ हद तक जितने भी रिवर्स होते हैं, जितने भी वेटलैंड्स होते हैं, उनके पास एक कैपेसिटी होती है टू क्लीन देमसेल्व्स अप वाया प्रोसेसेस लाइक चर्निंग. ओके, रिवर रेजुविनेशन काफ़ी हद तक देखने को मिलता है. उसके अलावा हमारे जितने भी एक्विफर्स हैं, जितने भी हमारे ओपन वेटलैंड्स हैं, जब भी रेन वाटर एक्सेसिव रेनफॉल होती है, तो भी वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज में मदद करते हैं. दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट, बहुत ही प्रैक्टिकल मैं आपको एस्पेक्ट बताऊं वेटलैंड कंजर्वेशन का. इन अ सिटी, इन एन अर्बन सेटअप, प्योरली अर्बन सेटअप, 2-3 दिन तक या फिर एक हफ्ते तक अगर एक्सेसिव प्रेसिपिटेशन हुआ, there is a huge chance for a flash flood. क्यों? इन एन अर्बन सेटअप फ्लैश फ्लड के चांसेस इसलिए भी बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ सीमेंटेशन ऑफ द सर्फेस. आपने सरफेस लेवल पे सब जगह सीमेंट लगा दिया, द वाटर डज नॉट गेट द चांस टू पर्सोलेट डाउन एंड रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, राइट. जो पानी है उसको चांस ही नहीं मिल रहा, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है ग्राउंड वाटर तक पहुंचने का. क्या हो रहा है? सरफेस रन ऑफ हो रहा है. सो देयर आर सर्टेन अर्बन सेटिंग्स that have created depressions, artificial depressions in maybe the outskirt of the city. कि कल को अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ भी जाए, फ्लैश फ्लड टाइप का सिचुएशन आ भी जाए, तो सरफेस रन ऑफ होके नेचुरल हमने एक आर्टिफिशियल सिंक क्रिएट किया है, वहीं पे जाके सारा रेन वाटर जो है इकट्ठा हो जाएगा. ओके, सो लाइक not only is it preventing surface runoff, not only it is helping in the management of flash flood, but also it is helping in what? It is also helping in rainwater harvesting in a way. It is also helping in rainwater harvesting. तो ये भी एक बहुत ही important सेटअप है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्हाट वी कैन से टाउन प्लानिंग का एस्पेक्ट आ जाता है कि कैसे हम लोग अपनी टाउन प्लानिंग पे वेटलैंड को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एज एन एनेबलर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, एज एन एनेबलर फॉर ensuring that every person in the city is getting clean drinking water supply. Other than that, obviously environmental and ecological concerns के हिसाब से उनकी जो ecological services हैं, ओके, बर्ड्स का जो कंजर्वेशन है उसके एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का जो फंक्शन है, उसके लिए वो ब्रॉड लेवल्स पे भी वेटलैंड कंजर्वेशन हैपेंस टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू राइट
or you can relate in your mains answer or even an essay for that matter, not just on the broad level, not just on the macro level. सभी लोग लिख लेंगे points, carbon sequestration and everything. You should also be able to relate wetland conservation in your day-to-day activity, in your daily life. कैसे हर एक individual को wetland conservation help करेगा आने वाले समय में. And it is a high chance, a high possibility that such a question can definitely be asked in your mains in a very unconventional undertone. All right? यहाँ पे अगर हम लोग जल्दी से देख लें व्हाट आर द थ्रेट्स दैट आर पोजिंग द एग्जिस्टिंग, तो जो आपका लैंड यूज पैटर्न है, अर्बन एनक्रोचमेंट्स हो गए, राइट. सो होता क्या है, ओवर द टाइम यूट्रोफिकेशन हुआ, न्यूट्रिएंट रन ऑफ हुआ. ओवर द टाइम क्या हो रहा है, वेटलैंड इज रीचिंग अ ज़ेरार्क मोड. वहाँ पे वुडलैंड जो इकोसिस्टम है उसका ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है ओवर द टाइम, ओवर द ईयर्स, राइट. Then this is basically happening because of human activities, human intervention, excessive pollution, excessive intoxication, right. उसमें plants and vegetation का growth देखने को मिल जाता है 100%. तो जो आपका land use pattern है, urbanization, right, unchecked urbanization, encroachment, unregulated and also sometimes certain illegal activities, okay, these are some of the threats. Then उसके बाद what we can say is pollution, industrial waste, sewage waste, surface runoff. For example, आप देख लो नजफगढ़ झील, नजफगढ़ झील जो दिल्ली में है, it is actually a wetland. Traditionally it is a wetland. It is supposed to, it was meant to, it was made for preserving the population of the water birds and the migratory birds, but it is so polluted, that it has turned into a mere nala. Okay, so that is also a sad state. Now this has to be a proper, अगर इसको हम लोग rejuvenate कर लेते हैं, अगर इसको हम लोग पूरा का पूरा क्लियर ऑफ कर लेते हैं, अच्छे से प्रिजर्व कर लेते हैं, तो ना सिर्फ एनवायरनमेंट को बट आसपास की जो रहने वाली लोकल कम्युनिटी है, ओके, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड इवन रिक्रिएशनल पर्पस के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, राइट. एराटिक वेदर पैटर्न्स, क्लाइमेट चेंज, ओके, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी वेटलैंड इकोसिस्टम इज अंडर सिग्निफिकेंट थ्रेट, right. Unregulated tourism activity, invasive species, okay. So invasive species का अगर हम लोग एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल लें तो हैदराबाद में you have the हुसैन सागर लेक. So हुसैन सागर लेक happens to be a man-made wetland, artificial है but important है. तो हुसैन सागर लेक में हमको देखने को मिला increased growth of water hyacinth. Now water hyacinth is a type of a water plant only, but it is not native to India. जब इस पर्टिकुलर स्पीशी का ग्रोथ हुआ तो ये ऑब्जर्व किया गया कि वहाँ पे जो जितनी भी लोकल एक्वेटिक डाइवर्सिटी थी, जितनी भी आपकी वहाँ पे लोकलाइज्ड एक्वेटिक लाइफ थी, धीरे धीरे ओवर टाइम इट स्टार्टेड टू गो एक्सटिंक्ट, वो विलुप्त होने लगी, राइट. तो यहाँ पे ये एक एस्पेक्ट आ जाता है. ठीक है, कंजर्वेशन लॉज बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, वीक लॉ एनफोर्समेंट. Now this depends a lot on the efforts of the local government, and not just the local government but also the local people. They should be raising their voice, okay, they should be raising their voice, mobilizing the community, the local authorities to do something about the wetland conservation, right. So यहाँ पे क्या क्या initiatives लिए गए हैं. Obviously लीगल इनिशिएटिव देखा जाए तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यू हैव द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. इसमें भी ऑल नो शेड्यूल्स आर क्रिएटेड फॉर एनिमल एंड प्लांट कंजर्वेशन. साथ ही साथ WPA वेटलैंड कंजर्वेशन के बारे में भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इट हैज प्रोवाइडेड. देन ऑल्सो वी हैव द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल. Okay, Wetlands of India portal is directly maintained by the Ministry of Forests, Environment, Forests and Climate Change.
National Plan for Conservation, we already launched a National Plan for the Conservation of Aquatic Ecosystem, right? नमामि गंगे कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं? अब नमामि गंगे जितने भी गंगा रिवर जितने भी स्टेट्स से फ्लो करके जाता है, वहाँ पे whatever the oxbow lakes that the river is forming and whatever is the river bed, right, and the basically the river bank purification के लिए बहुत important और बड़े initiatives लिए गए. For example, sewage treatment plants are being constructed. Okay, for example, trees are being planted on the river banks ताकि जो pollutant है river से पहुँचने से पहले वहाँ का जो local एक buffer हम लोगों ने create किया हुआ है वहीं पे then and there absorb हो जाए, right? It is not even reaching the river. So in that aspect also, another thing, clean livelihood program, यानी कि river bank के side में जितने भी आपकी livelihood activities होती हैं that may be causing pollution, right? For example, tanneries are there in Kanpur, leather making tanneries are there in Kanpur. Now काफ़ी लंबे समय से एक issue चला आया है that they are directly directly releasing the effluents, the pollutants directly into the river. जितनी भी आपकी thermal power plants हैं, right, they use water in heavy quantities to cool down the system. तो जो आपका जो remnant water होता है, जो waste material होता है, that also has a lot of thermal pollution, heat pollution. That is also getting discharged into the river. तो इन सारी activities पे control लगाना, डे टू डे जो छोटे लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ हैं, फिशिंग हो गया, बोटिंग हो गया, इवन जो धोबी घाट्स होते हैं, डायरेक्टली रिवर पोल्यूशन हो रहा है, कैसे वहाँ रिवर साइड से हटा के, रिवर बैंक से हटा के वी आर रीलोकेटिंग देम इन सम प्लेस एल्स, राइट? हाउ वी आर इंटीग्रेटिंग कि अच्छा अगर किसी का लाइवलीहुड डिपेंडेंट है तो कैसे उसको सस्टेनेबल बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बोटिंग एंड फिशिंग. ओके, तो उसका एक बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल ये भी है दैट वी हैव लॉन्च्ड व्हाट द अमृत धरोहर स्कीम. नाउ अमृत धरोहर स्कीम ट्राइज टू इंटीग्रेट व्हाट, इट ट्राइज टू इंटीग्रेट समथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद वेटलैंड कंजर्वेशन, कि वेटलैंड भी कंजर्वेशन, वेटलैंड कंजर्वेशन भी हो जाए एंड जो आपका लाइवलीहुड है दैट इज इन डेंजर वो भी प्रमोट हो जाए. Okay, so how can we integrate something that is associated with conserving wetland and promoting livelihood? Then you have the National Wildlife Action Plan. Okay? National Wildlife Action Plan is also giving out a very detailed stepwise efforts towards wetland conservation. Then you have the regulation of the wetland activities, right? Then you have inland, coastal and man-made. तीन तरीके के major wetlands. There are three types of important wetlands. जितने भी inland wetlands होते हैं उसमें आ जाते हैं आपके rivers, lakes, ponds. Okay, for example, लोकतक lake, वुलार lake, जितने भी मैक्सिमम आपके केओलादेव नेशनल पार्क, सांबर लेक, ये सारे आपके इनलैंड लेक्स हैं, राइट? इनलैंड का मतलब ही क्या हो गया? दे आर फेड बाय रिवर सिस्टम और द रिवर इटसेल्फ. स्टार्टिंग ऑफ, फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ वुलार लेक. अब वुलार लेक बहुत ही यूनिक टाइप का वेटलैंड है. द थिंग इज दैट इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है in the entire South Asia, not just in the Indian subcontinent but in the entire South Asia. First thing. Second thing, ये दो चीज़ों से बना है. First, it has been formed because of some tectonic activity or a tectonic movement that took place during the formation of the Himalayas or during any plate movement, earthquake आया and then एक depression expose हो गया, ultimately led to the formation of wetland. तीसरा जो इसका एस्पेक्ट है कि इट इज फेड बाय झेलम रिवर. नाउ मोस्ट ऑफ द लेक्स दे आर फेड ईदर बाय अ रिवर लाइक द वुलार लेक और दे आर फेड बाय रेन वाटर. ओके, या तो वो रिवर से फेड होता है या फिर दे आर फेड बाय रेन वाटर, रेन वाटर वेटलैंड्स आल्सो, राइट?
सो द थिंग इज कि अगर रिवर कोई लेक कभी बनाता है, यूजुअली इट इज एन ऑक्सबो लेक, यूजुअली इट इज एन ऑक्सबो लेक दैट इज मेड यूजुअली इन द मेच्योर स्टेज. जब रिवर मियांडरिंग के स्टेज पे पहुंच जाता है तो ऑक्सबो लेक बन जाता है. अब वुलार लेक के साथ सिग्निफिकेंस ये है दैट इट इज फॉर्म्ड बाय झेलम रिवर ड्यूरिंग द यंग स्टेज, यानी कि झेलम रिवर का जो यूथफुल स्टेज है उसी में ही इतना एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हो गया, प्लस देयर वाज सम टेक्टोनिक एक्टिविटी दैट अ लेक fed by the Jhelum river in its very young stage was formed. Okay, so that is the significance. Located kahan hai? Obviously I'm talking about Jhelum river. It's located in the union territory of Jammu Kashmir के बांदीपुर district. Likewise आपके major wetlands में आपका आ जाता है लोकतक lake. Okay, लोकतक lake now it is situated in the state of Manipur. मणिपुर में दो major rivers हैं, बराक river and the Manipur river itself. लोकतक lake बेसिकली बना कैसे है? इट इज मेड अप ऑफ सेंट्रीपीटल ड्रेनेज. इट इज मेड अप ऑफ सेंट्रीपीटल ड्रेनेज, यानी कि आसपास से जितना भी रिवर वाटर है वो ड्रेन होके लोकतक लेक में जा रहा है. ओके, तो जो डिप्रेशन, देयर इज अ डिप्रेशन, यू हैव द रेडियल ड्रेनेज, इट इज कॉजिंग सेंट्रीपीटल ड्रेनेज. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि यहाँ पे फ्लोटिंग फॉरेस्ट का हमें एक एस्पेक्ट देखने को मिल जाता है. फ्लोटिंग फॉरेस्ट जिनको लोकली फुमडी का नाम दिया जाता है. ओके, फुमडीज happen to be very very protective. People make use of these phumdis for various activities like fishing, boating, right? कुछ ट्राइब्स हैं जो टेम्परेरी बेसिस में यहाँ रहना भी पसंद करती हैं, राइट? सो दीज लोकल फ्लोटिंग फॉरेस्ट और फुमडीज, नाउ दिस इज द ओनली लेक इन द वर्ल्ड जहाँ पे ये ऐसा एक फीचर, हमको सिग्निफिकेंट फीचर देखने को मिलता है. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इनलैंड लेक इज केओलादेओ घाना नेशनल पार्क, जिसको हम लोग भरतपुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के नाम से भी जानते हैं, भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी के नाम से भी जानते हैं. अब ये जो आपका केओलादेओ नेशनल पार्क है, यहाँ का जो मेजर सिग्निफिकेंट रोल है इट इज कि पहले ये डक शूटिंग रिजर्व के तौर पे इसको यूज किया जाता था. देयर वाज एक्चुअली बैक इन 1899. ओके, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन और एनीथिंग. देन ओवर द इयर्स अगेन दिस लेक ग्रू, राइट? इसका जो आसपास का जो रिजॉर्ट है वो ग्रो होता गया. And you know the contributions of the Birdman of India, Salim Ali ji, Dr. Salim Ali. Now, Dr. Salim Ali contributed a lot towards the contribution and conservation of birds and wetland in India. तो केओलादेओ नेशनल पार्क को वेटलैंड में कन्वर्ट करने का इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल रहा है. So this is another very important aspect. ओके, उसके अलावा वी ऑल्सो हैव कोस्टल वेटलैंड. कोस्टल वेटलैंड में फॉर एग्जाम्पल यू हैव द सुंदरबंस. कोस्टल वेटलैंड्स में यू ऑल्सो हैव द चिलिका लेक, यू हैव द पुलिकाट लेक, यू हैव द वेम्बनाड लेक, राइट? Now these are some of the important. Vembanad Lake is located in the state of Kerala. Kerala backwaters से बना है और ये एक ऐसा लेक है जहाँ पे ब्रैकिश वाटर फार्मिंग होती है. ब्रैकिश वाटर पे राइस का कल्टिवेशन होता है वेम्बनाड लेक में. दैट इज ऑन द केरला बैकवाटर्स. तो ये आपके कोस्टल वेटलैंड्स के कुछ एग्जांपल्स हो गए, राइट? मैन मेड रिजर्वॉयर्स की अगर हम लोग बात करें तो इनलैंड के साथ साथ केओलादेओ is also a man-made reservoir. It is also what? It is also a man-made reservoir. Another important aspect is that Hussain Sagar Lake के बारे में we have already read. It is a man-made. एक wetland हमारी कंट्री में ऐसा है जो रामसर साइट में नहीं है, but it is a part of our national geological heritage. Yes. नेशनल जियोलॉजिकल हेरिटेज का ये एक पार्ट है बिकॉज दिस इज द ओनली लेक इन इंडिया दैट हैज बीन फॉर्म्ड
बिकॉज ऑफ एन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी, यानी कि क्रेटर का जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से ये लोनार लेक बना है, राइट, दैट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. Okay, so these are some interesting facts about wetland that we could have discussed. Okay, so that's it for today. That's it. This is the entire article summarized for you कि क्यों सबसे ज़्यादा इसका जो मेजर हाईलाइट है कि डे टू डे लाइफ में क्यों वेटलैंड कंजर्वेशन हमारे लिए ज़रूरी है. Thank you so much for watching this video, and for more such enriching content, stay tuned to Rama IAS. Thank you.